جامعہ حقانیہ اس میں داخلہ لیا، شیخ ادریس صاحب کے ساتھ پڑھا اور حدیث پڑھا، شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست، آپ کا بھائی جمال صاحب پی اے سی سے آپ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں بزنس کے بارے میں، کمٹمنٹ کے بارے میں۔ آج آپ کو میں اللہ والوں کی کمٹمنٹ دکھاؤں گا، وہ کمٹمنٹ آپ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پیچھے آپ ایک بڑا سا مدرسہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جب میں چھوٹا سا تھا، اسکول کا طالب علم تھا، تو ادھر ہم قرآن خواری کی رعایت تھی، اس گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا مسجد تھا اور اس میں گھاس اگی ہوئی تھی اور اس کا آپ کا دروازہ بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ شیرگڑھ محتمم صاحب جو وفات پا چکے ہیں، وہ ایک بزرگ شخصیت ادھر آئے تھے ایک نکاح کے لیے، اور اس نے اس کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اس مسجد کو آباد کرے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ فاروقیہ انبار، اس کی 23 برانچیں ہیں، اس میں 600 سے زیادہ طلباء ابھی سبق پڑھتے ہیں۔ 21 سال کا سفر، ان کی کمٹمنٹ، ایک چھوٹی سی مسجد، گھاس اگی ہوئی، دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، آئے میرے ساتھ۔ ہم اس وقت بیٹھے ہیں مولانا قاری عبدالعزیز صاحب کے ساتھ۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قاری صاحب کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ خود اسباق کدھر سے پڑھے ہیں، دینی اسباق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالعزیز ہے۔ میں اصل میں قریب ضلع مردان ہمارے قریب ہے، اس میں گاؤں ہے پھر سدو، جو ہمارا آبائی گاؤں ہے، وہاں میرا پیدائش ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے 8ویں تک تعلیم کیا اسکول میں، اور اس کے بعد میں ہمارے مردان کا جو مرکز ہے تبلیغی، اس میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد میں مردان مرکز کا جو شاخ تھا گھڑی کپورہ میں، اس میں تقریباً 3-4 سال اسباق پڑھے۔ اس کے بعد جامعہ حقانیہ اس میں داخلہ لیا، رابعہ، خامسہ اور سادسہ وہاں پڑھا۔ اس کے بعد دور حدیث موقوف علیہ جو میں نے شیخ ادریس صاحب کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد میں نے دور حدیث کے لیے اساتذہ کے مشورے سے میں جامعہ فاروقیہ کراچی چلا گیا، وہاں دور حدیث پڑھا، شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے فارغ ہوا، پھر یہاں ہری چند میں ہم نے کام شروع کیا درس و تدریس کا ساتھیوں کے مشورے سے۔ پھر وہاں کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم یہاں منتقل ہو گئے، یہ جو یہاں ابھی ہمارا مدرسہ ہے۔ قاری صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی ویورز کو بتایا کہ اس وقت جب میں آیا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی ادھر، اس میں گھاس اگی ہوئی تھی، کوئی انٹری بھی نہیں لے سکتی۔ کیا میری بات صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر میں سننے میں آ رہا ہے کہ شیرگڑھ کے محتمم صاحب
रहमत उल्लाह अलैह, वो इधर आए थे, उन्होंने दुआ की थी बिल्कुल। इस जगह की आबादी के लिए। बिल्कुल, उन्होंने दुआ की, मस्जिद की आबाद की। जी जी। और आप कब तशरीफ लेके आए थे इधर? इधर इधर आपने काम 2001 में 2001 में आपने काम स्टार्ट किया। 2001 और 2022 21 साल का सफ़र आप खुद देख रहे हैं। कारी साहब ये बताइए, अब मदरसे में कितने तलबा है और किस किस शोबे से वो वाबस्ता है? हमारे यहाँ जो अभी तलबा कराम पढ़ रहे हैं, जो मुकीम तलबा कराम है मदरसे में, वो तकरीबन 330 के लगभग है। और उसमें क़ायदा, नाज़िरा, हिफ़्ज़ के 4 क्लास है, और इसी तरह राबिया तक हमारे साथ तलबा कराम पढ़ रहे हैं दरसी निज़ामी। इसमें जो तलबा कराम इलाक़े वाले हैं, जो सुबह और शाम असर को आते हैं, तकरीबन उनकी तादाद 450 की है। 450। और इधर करीब हमारे गिरदनवाह में हमारे शाखें भी है, तकरीबन 23 हमारे शाखें हैं, उसमें भी इलाक़े के बच्चे पढ़ते हैं। वो सफ़र जो एक छोटी सी मस्जिद से स्टार्ट हुआ, अभी 23 से ज़्यादा शाह, और आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा गुलिस्तान है। कारी साहब, आपका मैं ये पूरा सिस्टम देख रहा हूँ, तलबा देख रहा हूँ, असातिज़ा कराम की तनख्वाहें हैं, जो तलबा है उनके ख़र्चे, ये सारे ख़र्चे को कवर करने के लिए आपका कोई सिस्टम है, कोई कमेटी वगैरह? इसके लिए हमारा कोई कमेटी वगैरह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह के लोग मुसलमान नेक मुसलमान ख़ुद ब खुद ताउन करते हैं, ख़ुद यहाँ आते हैं और हमारे साथ ताउन करते हैं। हमारा चंदे का कोई तरतीब नहीं, हमारा कोई सफ़ीर है, ना चंदे का हमारा कोई तरतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद है, ख़ुद बहुत आते हैं और ताउन करते हैं। माशाअल्लाह। कारी साहब, हमें ये बताएं कि ख़र्चे कितने आते हैं इसकी तकरीबन माहाना? क्या चेक कर सकते हैं रजिस्टर को? मैं चेक कर रहा हूँ इनके रजिस्टर को। ओके, तकरीबन 5 लाख के ऊपर, तकरीबन 5 लाख के ऊपर, तकरीबन 5,70,000 की इनके ख़र्चे हैं। इसमें तामीर नहीं है, क्योंकि इनको भी तामीर की ज़रूरत है। क्या अभी कोई तामीर कर रहे हैं मदरसे में? तामीर की ज़रूरत है। आइंदा हमारे साथ तलबा कराम के लिए हॉस्टल वगैरह बिल्कुल नहीं है, गुंजाइश नहीं है मौजूदा जो हमारा हॉस्टल है। जी जी। उसके लिए हमारा बहुत ज़रूरत है इसकी। उसका हॉस्टल इस बिल्डिंग के ऊपर बन सकता है? ऊपर हम बनाते हैं इंशाल्लाह, इरादा है इसका इंशाल्लाह। ये 5,70,000 तकरीबन माहाना खर्चा। इसके अलावा आपको पता तामीरात पे कितना हिस्सा बनता है। कारी साहब, आपने जो दीन की खिदमत स्टार्ट की है, इतनी बड़ी खिदमत आप कर रहे हैं, लोग इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं? उसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं। एक तो ये कि मदरसे के उसूलों के मुताबिक इलाक़े के लोग बच्चे भेजें और वो यहाँ इंशाअल्लाह तालीम हासिल करके दीनी, ये भी एक ताउन है। दूसरा ये कि हमारे साथ इस काम में शरीक हो जाए, दीनी काम है, माली ताउन करे, जानी ताउन करे, और लोगों को तरगीब दे कि वो यहाँ वो आए और हमारे साथ ताउन करे। इसलिए कि आपने हमारे ख़र्चे का जो आमद और ख़र्च है वो आपने चेक किया, ख़ुद बहुत आपने देख लिया। अगर आप में से कोई भी मदरसे की मदद करना चाहता है, इस दीन के काम में अपना हिस्सा चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्टली डोनेशन भेज सकते हैं। ये इतना अल्लाह वाले हैं, इनके अपने मदरसे का बैंक अकाउंट ही नहीं है, इनका सारा कुछ जो है वो अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह से मांगना, और लोग अल्लाह के दिलों में डालता है, वो खुद आते इनके साथ मदद करते हैं। यदि हमारे दिलों में अल्लाह ने डाला कि हम आए और ये वीडियो बनाए। और इसके अलावा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हमें पता चला तकरीबन 780 के करीब तलबा है इसमें, 27 असातिज़ा कराम है इसमें। ये सारा सिस्टम मौलाना साहब चलाते हैं। ये इसको बोलते हैं अल्लाह का काम, इसको बोलते कमिटमेंट वाला बंदा, इसको बोलते कमिटमेंट। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कमिटमेंट का, फैशन का, इसको कमिटमेंट और पैशन बोलते हैं। कारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहरबानी, आप जज़ाए खैर दे। अब आप हिस्सा कैसे ले सकते हैं? आप अपने बच्चों को बेच सकते हैं, आप इसमें कैश बेच सकते हैं, इस सिस्टम में काम हिस्सा ले सकते हैं, अपनी ज़कात अतियात बेच सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को लाजिम शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।